Good morning, student. Today I am going to solve the question bank from class 10th standard of only chemistry subject. Okay, today I am going to solve the question number 2b. What is question number 2b? Explain the following reaction with the balance equation. First is sodium burn in air. Second, reaction of aluminum with oxygen. Third, magnesium reacts with dilute HCl. Fourth, aluminum reacts with dilute HCl. Reaction of zinc with dilute HCl. सल्फर बर्न इन एयर, क्लोरीन डिजोल्व इन वाटर. ये सब अपन अभी देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2b फिफ्थ ये भी देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2b फोर्थ क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंड व्हेन सोडियम बर्न इन एयर. तो क्या होता है इसका, देखो रिएक्शन क्या है इसकी. 4Na plus O2 gives twice Na2O. When sodium burn in air, सोडियम मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड. क्या होता है इसमें, सोडियम मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है. सेकेंड, फॉर व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट्स गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड. 4Al plus thrice O2 gives twice Al2O3. Third reaction, when magnesium metal reacts with dilute HCl at room temperature, the metals dissolved in HCl yielding magnesium chloride and colorless hydrogen gas. Reaction balancing reaction देखो, Mg plus twice HCl gives MgCl2 plus H2. H2 क्या है, गैस है. Next reaction is what happens when aluminum metal reacts with dilute HCl. क्या होता है, when aluminum metal reacts with dilute HCl at room temperature, the metal dissolved in HCl acid yielding aluminum chloride and colorless hydrogen gas. Reaction balancing reaction, twice Al plus 6 HCl gives twice AlCl3 plus H2. Next, what happened when zinc reacts with dilute HCl? When zinc reacts with dilute HCl, it gives metallic zinc chloride with the evolution of hydrogen gas. Reaction Zn plus twice HCl gives ZnCl2 plus H2 gas. Next, when sulfur reacts with air, it forms sulfur dioxide. क्या फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड. रिएक्शन S plus O2 gives SO2. When chlorine reacts with water, it forms hypochlorous acid and hypochloric acid. दोनों फॉर्म होता है इसमें. देखो Cl2 plus H2 फॉर्म में HOCl plus HCl. Next, when sodium aluminate is treated with water, it's hydrolyzed to give precipitate of aluminum hydroxide. Reaction देखो, NaAlO2 plus twice H2O gives NaOH plus AlOH by 3. Next, Fe plus CuSO4, यानी जब कौन सा भी मेटल अपन क्या करेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर डालेंगे तो उसका क्या होगा, यानी फेरस सल्फेट. ठीक है, फेरस में अगर कॉपर सल्फेट में अपन डालेंगे तो क्या होगा, वो फेरस सल्फेट तैयार हो जाएगा. ठीक है, कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो. और कॉपर ये अलग होगा. क्यों अलग होगा, व्हेन फेरस सल्फेट डिसॉल्व्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. क्यों होता है वो, कॉपर और आयन का सेपरेशन क्यों होता है, क्योंकि आयन मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्म करता है SO4 से और FeSO4 फॉर्म होता है, यानी फेरस सल्फेट फॉर्म होता है. नेक्स्ट, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयन. अगर फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम को रिएक्शन करेंगे फेरस ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम की, तो अपने को क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और आयन ये अलग होगा. ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम. ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है, देख लो. या इसमें दो होते हैं, एक एनोड में फॉर्म होता है, एक कैथोड में फॉर्म होता है. एनोड में क्या होता है, एल्यूमिनियम प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, यानी एल्यूमिनियम 4 एलिमेंट और 6 O2 प्लस अपने को मिलता है, थ्राइस O2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. एक एनोड में होता है, एक कैथोड में होता है. ये पूरी बैलेंसिंग रिएक्शन है. ट्वाइस Al2O3 गिव्स 6O ट्वाइस नेगेटिव प्लस 4Al प्लस 3. बाद में है व्हेन ड्राई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इग्निटेड at about 1000 degree centigrade, it gives aluminum oxide, यानी twice AlOH by 3 when we heated up to
1000 degree centigrade, we get Al2O3 plus thrice H2O. Next, when ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट is heated, क्या होगा? When zinc carbonate is heated strongly in a limited supply of air, it gives zinc oxide and carbon dioxide. ZnCO3 plus Zn gives ZnO plus CO2. Next, ZnO plus C gives Zn plus CO. यानी zinc oxide when react with carbon on heating to form a zinc metal and the carbon monoxide. Zinc oxide react with carbon on heating to form a zinc metal and carbon monoxide. क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5th है. एक्सप्लेन द कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस इक्वेशन. एग्जाम्पल दो, जिसके एग्जाम्पल है तो उसके एग्जाम्पल दो, और जिसका रिएक्शन होंगी वो उसकी रिएक्शन दो. ठीक है. फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड. व्हाट इज मीन बाय आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्स बॉन्ड विथ नेगेटिवली चार्ज आयन and forms a transfer electrons to another and transfer electron to another is known as ionic bond. आयनिक बॉन्ड यानी दो अलग अलग हो गए. Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, और इसका बॉन्ड फॉर्म क्या हो रहा है? NaCl फॉर्म हो रहा है, यानी वो न्यूट्रल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. तो आयनिक कंपाउंड का भी एग्जांपल यही है और आयनिक बॉन्ड का भी एग्जांपल यही है. ठीक है. आयनिक कंपाउंड यानी क्या है? द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द टू यूनिट्स नेमली कैटायन एंड एनायन. जैसे कैटायन क्या है? Na पॉजिटिव और एनायन Cl निगेटिव है, आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. द कैटायन एंड एनायन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, there is electrostatic force of attraction between them. Example NaCl and AgI. Next, gangue. What is meant by gangue? Rocks and other waste material present in the ore is known as gangue. Example, जो भी अपने को gangue मिलते हैं वो है कार्बोनेट, सल्फेट्स वगैरह जो है वो क्या है? सब gangue है. Next is ore. Ore is a naturally occurring minerals from which a metal can be extracted usually on a commercial basis. Example Al2O3 twice SiO2O3 and twice H2O. ये क्या है सबके एग्जाम्पल. नेक्स्ट है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. व्हाट इज मीन रोस्टिंग? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जनरली सल्फाइड्स ओर आर रोस्टेड. एग्जाम्पल रिएक्शन इसकी ट्वाइस ZnS प्लस थ्राइस O2 गिव्स ZnO प्लस O2. ZnO प्लस S होना है यहाँ पे. ठीक है. ये आप करेक्शन कर लेना है. यहाँ पे क्या होना है? प्लस S होना है. ठीक है. फिर कैल्सिनेशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर इन द absence of air to high temperature but insufficient to melt the ore. The manufacture of lime from the limestone. ये इसका एग्जाम्पल किसका? ये कैल्सिनेशन का. The manufacture of lime from the limestone. Next is corrosion. What is meant by corrosion? It is a naturally occurring process which converts a refined metals to a more chemically stable form, such as its oxide, hydroxides or sulfides. और दूसरे किससे भी अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं. क्या है? द ग्रेजुअली ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर आर chemical reaction on their surface is called corrosion. Example of corrosion is corrosion of metals is rusting of iron. Rusting यानी जो अपने खिला होता है ना, जो अपन दीवार पे ठोकते हैं, वो क्या होता है? बारिश की वजह से क्या होता है? उसमें जंग आती है. वो जंग को क्या बोलते हैं अपन? corrosion. तो वो इसका क्या है? एक एग्जाम्पल है. जैसे रस्टिंग ऑफ ओर, उसे क्या कहते हैं अपन? रस्टिंग ऑफ ओर. वो क्यों फॉर्म होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ blowing flax substance on a iron object on a exposure to the moist air. जैसे वो हवा और पानी से मिल जाता है तो उसके ऊपर वो जो लेयर आती है उसे अपन कहते हैं corrosion. Next is mineral. The naturally occurring chemical substances in which metals occurs either in native states or in a combined state are called minerals. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या है? ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम 2 मार्क्स ईच. कौन कौन से देखना है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का, फ्लोटेशन का, इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस एंड एनोडाइजिंग. ये सबके मैं आपको डायग्राम अब एक एक बताती हूँ. ठीक है. देखो ये डायग्राम है इलेक्ट्रोलिसिस की, ये आपको ड्रॉ करना है. सेकेंड डायग्राम है एनोडाइजिंग की.
ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना है। फिर ये है मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन की, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। फिर ये है फोर्थ फ्लोरेशन प्रोसेस की, ये भी आपको ड्रॉ करना है। फिर है इलेक्ट्रोलिसिस सेल यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम की डायग्राम, ये आपको ड्रॉ करनी है। और ये है हाइड्रोलिक प्रोसेस की डायग्राम। ठीक है, यह सब डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ये है कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, ये आपका फ्लो चार्ट आपको करना है। ठीक है, तो ये देखो फ्लो चार्ट में क्या है, मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और क्या दिया है अपने को, 4 जो मेथड है वो अपने को लिखना है। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल बेस सेपरेशन, सेकंड है लीचिंग, फिर फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस मेथड की है, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये 4 मेथड ऑफ किसकी ही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की। फिर है सेकंड में है प्रिवेंशन ऑफ कोर्क। प्रिवेंशन ऑफ कोर्क के कौन कौन से आते हैं, उसमें है बाय पेंटिंग, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, बाय अलोइंग इट और बाय प्लेटिंग। ये सब क्या है, 5 प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। फिर थर्ड क्वेश्चन है एल्यूमिनियम आपको दिया है, आपका इसका सिंबल पूछा है, वैलेंसी पूछी है, एटॉमिक नंबर पूछा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा है। ठीक है, ये सब का आपको करना है। तो क्या है इसका सिंबल है Al, वैलेंसी है 3, एटॉमिक नंबर है 13 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है Ne3s2 3p2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।